Good morning, everyone. So today we are going to start with the decisions, financial decisions that we have. So we have investment decision, financing decision, and dividend decisions. So today we'll be starting off with the first decision and we'll be doing it in detail. So let's start the first decision. Okay. So for any financial manager, he is required to take the three decisions. The first one is investment decision, second one is financing decision, and third one is dividend decision. बेसिक मीनिंग क्या होता है इन तीनों डिसीजंस का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो द slides which are going to come now is going to some give you a some quick recapitulation of the same thing that we have already covered. So I'll be not explaining much in those slides, but just see that if there is anything which is not clear to you, please write it down in the chat box and we'll be taking up those doubts, right? But we'll be going a little quick with all those things about the investment decision that we have already covered. Okay, so let's move on to the slide. So investment decision is the first decision that the finance manager takes. Okay, so इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है टू सेलेक्ट the correct avenue wherein you are planning to invest your money, wherein you are planning to deploy your funds so that you can generate returns, and that returns which you are planning to generate is the maximum possible return that could be generated over any investment proposal. Okay, so resources are always scarce and can be put to alternate use. A firm must choose where to invest so as to earn the highest possible return or profits. I hope this is clear to all. Investment decision relates to the decision about how the firm's funds are invested in the different assets, that is different investment proposal. And investment decision की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो मेजर फोकस रहेगा, जिसको अभी हम डिटेल में आज बात करेंगे, वो हमारा रहेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट there are two areas, or there are two avenues wherein we need to invest our funds, whatever that we have raised, which are scarce, always scarce, and we have to invest some money so as to take care of the day-to-day expenses that we have, and that is called working capital management decision. And the second is to invest the money in the fixed assets, right? So that fixed assets wherein we are planning to invest the money can be in purchase of land, building, plant and machinery, anything, right? Opening of a new plant, opening of a new facility or a new branch. Then if we are going for acquisition, or if we are going for takeover, expansion, modernization, any kind of replacement of assets that we are planning to do, right? So all these things, or if we are planning to have a new product line altogether, or maybe some research and development plans that we have in our mind and which we are planning to implement in the organization to have in-house research and development center. So any decision that we take for all these scenarios or for all these options, we have to take capital budgeting decision, right? Which is also called capital expenditure decision or long term investment decision. Okay, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. ओके, आगे बढ़ते हैं. So the first decision that we take under investment decision is working capital management decision. So working capital management अभी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, बाद में इसे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी हमें फैक्टर्स वगैरह सब कवर करने हैं. बट अभी बस देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन किसके बारे में बात करता है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी. मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन की, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट लेवल, but we are only trying to maintain the profit levels which we are already earning, right? And for managing our day to day requirements. So second point is concerned with decision regarding maintaining level of cash, inventory and debtors. These are the three primary assets, current assets, which are to be taken into consideration for the efficient management of the working capital requirement. And then next is affects the day-to-day working of the business. Of course it will affect, because working capital is basically talking about the management of day-to-day requirement only of the business.
The next is influences liquidity as well as profitability. इसका influence liquidity पे ज्यादा रहता है, profitability पे कम, क्योंकि profit को आप सिर्फ sustain कर सकते हैं, increase नहीं कर सकते working capital के through. The more important aspect which you need to focus under working capital management decision is to ensure that the substantial liquidity or the required liquidity is being maintained, which is going to ensure that the profit which we are earning in the day-to-day course of business is not getting affected because of it. Okay. The next is essential ingredients of sound working capital management are efficient cash management, efficient inventory management, and efficient receivable management. तो ये हमने किया सारा रिवाइज, वो सब चीजों को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं. किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay, I suppose there are no doubts to anyone. So let's move further and let's come on the next point, which is the major point for today's class, and that is capital budgeting decision. Okay, capital budgeting decision मैंने अभी आपको बताया कि every amount that we are planning to deploy in purchase of fixed asset is actually going to affect our profitability position. That means we spend money, we invest money in the fixed asset so that we can take our organization to the next level, right? And by taking us to the next level, we mean that we are trying to increase our profits which we are already earning, right? So any organization which is in the declining mode will not think of going for any kind of capital budgeting decision, because their focus would be on survival rather than going for growth. So these kind of decisions are generally taken up by those organizations which are planning for growth. Okay. And यहाँ पे लिखा हुआ भी है, leads to the increase in earning capacity of the concern. It is important because a size and competitiveness of the business is affected by this decision. मैंने आपको जितने भी examples दिए यहाँ पर, चाहे मैंने बात किया acquiring of new fixed assets, या फिर opening up a new branch, or opening of new in-house R&D department, या opening of a new product line, तो ये सारे examples के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? इन सारे examples में आप समझ पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस का जो साइज है, जो स्केल है, जो उसका लेवल ऑफ कंपटीशन है, वो सब इंक्रीज करने वाला है, राइट? इसके आगे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. इसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, मगर मैं आपको अभी यहाँ पे एक क्रिस्प फॉर्म में बता देती हूँ कि व्हाई इज इट सेइंग दैट इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. कॉस्ट जिसको हम फाइनेंस में कैश फ्लोज बोलते हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो. तो यहाँ हम फोकस कर रहे हैं कैश आउटफ्लो के ऊपर. तो आप ये देखिए कि जब भी हम किसी भी फिक्स एसेट में पैसा लगाते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि फिक्स एसेट की लाइफ बहुत लंबी होती है. मतलब मान लेते हैं 5-10 साल तो मिनिमम फिक्स एसेट की लाइफ रहती ही है, राइट? एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी related fixed assets, but we are basically talking about some fixed assets which have got a very long span of life. Like we are talking about building, we are talking about facilities that are created, we are talking about furniture, right? We're talking about machinery also. So all such fixed assets, whenever we purchase, since it has got a very long life, so whenever we purchase it, it is never coming at a price which is less. That means which is cheap. So every fixed asset that we are purchasing is an expensive asset, right? So all those fixed assets that we are planning to hire, or when we are planning to acquire for our business operation, is actually going to increase the cost which we are going to incur, right? And cost means we are talking about the cash outflow. So the cash outflow increases when we work on on purchase of any such fixed assets which has got a long life, right? Next point is irreversible except a huge cost. Irreversible इसलिए कहा गया है इसे because any decision that we are taking for the purchase of any fixed asset, आप ये देखिए कि उसको बहुत ध्यान से लिया जाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो एक तो बहुत कॉस्टली डिसीजन आप ले रहे हैं, मतलब बहुत सारा फंड्स आप लगाने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं. दूसरा, जो समय है उस फिक्स एसेट की लाइफ का वो भी बहुत लंबा है, राइट? तो और जो आपको उस फिक्स एसेट से रिकवरी होनी है, जो बेनिफिट मिलना है, उसमें भी अभी काफी साल लगते हैं. तो ये सब जब हम ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर
अगर एक डिसीजन नहीं लेते हैं असेट को परचेज करने का और परचेज कर लेते हैं एक गलत असेट को, तो वो हमारे लिए एक लॉस का रीजन बन जाता है। और वो जो लॉस है वो आप इनकर करेंगे बिकॉज यू विल बी गोइंग फर्दर विद द प्रोजेक्ट। और अगर आप ये सोचते हैं कि मिडवे आप आकर उस प्रोजेक्ट को ऑल द सडनली आप उसको अबंडन कर देंगे और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, तो वो जो आप उसको यहाँ पे अबंडन कर रहे हैं, आप ये देखिए कि उसकी वजह से कितने लॉसेस होंगे। यानी कि पिछला जो आप इनकर कर चुके हैं वो ऑलरेडी डूब गया, और जो आपने आगे इनकर करना है वो एक नई कॉस्ट है जो आप इनकर करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी पेनल्टी की तरह हो जाती है, राइट। इसीलिए ये माना जाता है कि जितने भी हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, जो भी हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, they are irreversible decisions because we are going to incur huge amount, we are going to invest huge amount, and that too for a very long period of time. The return will also take another a long period of time to recover. So that is why we cannot think of going back in a decision and just stopping it midway, because if we'll do that we will incur heavy penalties, right? I hope this is very much clear to you. Anybody having any doubt in this? ये बहुत आपका आपका ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज ये बात कर रहा है कि क्यों कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन माना गया है, राइट। सो इन दिस वी हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स, बट ये 3 नहीं है बल्कि ये 4 है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ पॉइंट होता है जिसके अंदर यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, वो है रिस्क, राइट। और रिस्क क्यों है? रिस्क इसलिए है बिकॉज आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड लगाया और उसको आपने लंबे समय तक लगाया, तो इसके ऊपर जो अब आपको रिटर्न्स जनरेट करने होंगे वो इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि वो आपकी कॉस्ट को आपकी रिकवर कर सके, वो कॉस्ट जो आपने ये फंड रेज करने के लिए इनकर किए हैं। दैट मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना ये, तो इससे इसके लिए मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन भी लिया होगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के टाइम जो मैंने कॉस्ट इनकर किया और फिर मैंने उसे एम्प्लॉय किया फिक्स्ड एसेट के अंदर, उस फिक्स्ड एसेट से मुझे वो कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, राइट। अगर वो रिकवर नहीं होती है तो वो मेरे लिए एक रिस्क बन जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज a huge amount of risk which is involved in these decisions. Okay, वैदिक आपने सवाल पूछा है मैम irreversible except a huge cost, इसका क्या मतलब एक्सेप्ट अ ह्यूज कॉस्ट का? ओके, एक्सेप्ट अ ह्यूज कॉस्ट मतलब ये कह रहा है बेसिकली कि ये डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं, मगर अगर आप ह्यूज कॉस्ट यानी कि ह्यूज पेनल्टी लॉस इनकर करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आप इस डिसीजन को रिवर्सिबल को भी रिवर्स कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा है कि क्योंकि हम लंबे समय के लिए पैसा लगाने वाले हैं और हम इतना सारा पैसा लगाने वाले हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब हम पैसा लगा रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न आउट ऑफ इट, अ सरप्लस आउट ऑफ इट, और in the middle of the project we decide that we are no longer going with this project, let's just stop this project here itself and start with a new project altogether. Can you do this? Can anybody do this? So if you're doing this, so it will lead to the incurring of huge cost. The penalty will be there, and that penalty will be the loss that you will be incurring for abandoning the project midway, the ongoing project which you have already started, and starting the new project altogether, right? So that will actually make an organization incur huge cost. Huge cost means penalty of leaving the existing one and starting the new one. Is it clear now? Anybody who has still not understood this slide, please ask, right? ये slide बहुत important है, अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी तो पूछिए। सभी को समझ में आ गया? ओके, कृष्ण आपने you have raised your hand. Tell me what is the doubt? क्या है आपका डाउट? Please write it down. Okay, so while you are writing we'll move further and we'll move on to the okay, penalty वाला समझ नहीं आया। Okay, मुझे बताइए
कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मीनिंग होता है कि हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करने वाले हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ये सबको समझ में आ गया? ओके। अब जब हम ये जो डिसीजन लेते हैं, ये लॉन्ग रन में लिया जाता है, मतलब ये हमारे बिजनेस के लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है, राइट? अब आप मुझे बताइए कि ये डिसीजन को क्यों इंपॉर्टेंट बताया गया है? इस डिसीजन को इंपॉर्टेंट बताया गया क्योंकि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं परचेज करने का फिक्स एसेट को, ये हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर करता है। दैट मीन्स we are considering that wherever that we are going to employ these funds by purchasing these plant and machinery, this is going to ensure that our profits will increase in future. तो ये growth oriented एक अप्रोच होती है, राइट? यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड आपका फॉर्मेट लेकर अज्यूम करके चलता है कि अगर आप पैसा फिक्स एसेट में लगा रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं आगे क्या पॉइंट है। आगे का पॉइंट ये कहता है आपका कि आपने काफी सारा पैसा लगाया, मतलब इट इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, सो यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड विच यू हैव रेज्ड, राइट? तो वो जो आपने फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू जो फंड रेज किया था, वो उसकी एक कॉस्ट है, याद होगा आपको अभी भी कि उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कुछ कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कॉस्ट जो आपने इनकर की है उसको आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, तो वो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अपने आप में एक कॉस्ट है जो आपको रिकवर करनी है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो आपके लिए एक लॉस हो जाएगा। मतलब पहली बात कि जो पैसा लगाया, मिनिमम जो आपको रिकवर करना है वो रिकवर करना है उसकी कॉस्ट का अमाउंट। तो अगर मैं कहूं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, राइट? अब 10% अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, रेट ऑफ कॉस्ट आ रहा है या ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है, तो क्या मेरी रेट ऑफ रिटर्न भी इस इन्वेस्टमेंट से मिनिमम 10% होनी चाहिए या नहीं? अगर 10% नहीं होगी तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे इस प्रपोजल में? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी कॉस्ट इनकर कर चुके हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। अब जब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, इट शुड बी एनी डे मोर देन 10%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात की जा रही है कि जो भी आप पैसा लगाने वाले हैं वो डिसीजन बहुत ही केयरफुली एनालाइज करके अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज अगर आप जल्दीबाजी में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी तरह के फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने का, और उसका जो रिजल्टेंट आउटपुट है अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉस्ट वो ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, जिसकी रिकवरी होनी चाहिए थी, एक तो वो रिकवर नहीं होगा। दूसरा, जो अब आप इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे यहाँ बीच में, तो जितना कॉस्ट आप इनकर कर चुके हैं, यानी कि जितना पैसा आप लगा चुके हैं इस प्रोजेक्ट में, वो तो डूब गया, राइट? और साथ संक कॉस्ट पढ़ा था आपने अकाउंट्स में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब डूबा हुआ पैसा, राइट? इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि वो पैसा जो मैंने किसी असेट में लगा दिया जिसका कि मुझे बेनिफिट नहीं मिला फ्यूचर में, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? मेरी संक कॉस्ट। तो ये मेरी पेनल्टी नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी बात, आप जिस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं बीच में और आप जो नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसको शुरू करने में भी फिर से कॉस्ट लगेगी। तो वो जो पैसा डूबा वो एक डूबा, प्लस जो नया शुरू करेंगे उसमें जो और कॉस्ट इनकर होगा वो भी कुछ कॉस्ट आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा, जो फंड्स इन्वॉल्व करेगा, कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व करेगा, वो भी अपने आप में एक कॉस्ट है। तो ये सारा क्या हुआ? ये सारा हुआ बर्डन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, राइट? आई होप now you understand, Krishna, what is penalty. So penalty means anything which you planned but it is not going as per the plan. So if you have planned to generate return from your investment, but if you are unable to generate that return and you are incurring additional cost despite of the fact that you were supposed to generate returns, favorable returns, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है penalty. Okay, I hope this is clear now. नेक्स्ट डाउट है, शमित आपने बोला कि मैं आपको रिपीट करूं, बच्चे मैंने पूरा रिपीट कर दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं इस कॉन्सेप्ट को। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो आप रेफर कीजिए और इससे समझिए। ओके,
लक्ष्य आपने बोला कि एग्जाम्पल से समझा सकते हो क्या? मैंने एग्जाम्पल ही दिया था लक्ष्य अभी, जब मैंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज की और उसको परचेज किया, आपने 10 साल की उसकी लाइफ थी और लाइफ में आपने उसको 5 साल के बाद समझा कि ओके ये टेक्नोलॉजी तो अब मेरे लिए आउटडेटेड हो गई है, लेट्स स्टॉप और नया प्रोजेक्ट में परचेज किया जाए जो अभी आपका नया टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में। तो ये जो पिछली टेक्नोलॉजी में आपने पैसा लगाया वो क्या हुआ? वो डूबा नहीं। और अगर वो डूब गया तो जो नया प्रोजेक्ट अब आप खरीदने वाले हैं उसमें जो पैसा लगेगा वापस, क्या वो सब मिलाकर आपके लिए एक हेवी कॉस्ट नहीं बनी? यही बात की जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके आर्यन, अब आपका डाउट, अगर सब कुछ प्लान्ड है तो ह्यूज कॉस्ट इनकर ही क्यों करनी है, और अगर करेंगे तो किस केस में? कोई एक्सेप्शन? ओके, सब कुछ प्लान्ड है, बहुत सही आपने कहा, मगर कितने अच्छे से प्लान्ड है, क्या हम ये बता सकते हैं उसका कि क्या कोई लिमिट है कि कितने अच्छे से हमने प्लानिंग की है? अगर मेरे प्लानिंग में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया, या बाय चांस मैं रिस्क के फैक्टर्स को कंसिडर करना भूल गई, या कोई ऐसा रिस्क था जो मैंने ओवरलुक कर दिया, तो क्या आप समझ सकते हैं आर्यन कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है जहां पर कि आपने जो प्लान किया था वो वैसा इम्प्लीमेंट नहीं होगा जैसा आपने सोचा था, और इसकी वजह से अगर आप सोचेंगे कि अब मैं इस डिसीजन को, इस फिक्स एसेट को जिसको मैंने परचेज करने का डिसीजन ले लिया है, इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, और अगर आप रिवर्स करने की कोशिश करेंगे सो इट विल make the organization incur huge cost. Is it clear now? Anybody still having any doubt on this? Anybody? Aaron, is the concept clear now? Okay. दूसरा डाउट आया, आर्यन का जवाब नहीं आया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। नेक्स्ट इज परिधि। ओके आर्यन, यू हैव सेइंग you're clear now. ओके, परिधि का डाउट है, मैम अगर बिजनेस की स्टार्टिंग है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, तब कोई तब तो कोई नहीं आएगा ना सेम ना सेम और ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे बताइए परिधि, तुमने बिजनेस शुरू तो किया, बिजनेस को शुरू किया यानी कि कैपिटल रेस की होगी, कैपिटल को इन्वेस्ट किया, किस में इन्वेस्ट किया? फिक्स एसेट को परचेज करने में, और थोड़ा वर्किंग कैपिटल के लिए रखा अपने पास पैसा, यही किया तुमने। अब मुझे बताओ कि जब तुमने पैसा लगाया है फिक्स एसेट में, क्यों लगाया फिक्स एसेट में पैसा? उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन कर, उस पे ऑपरेशंस रन करने के लिए और रिटर्न जनरेट करने के लिए। ऐसा क्यों लगा आपको कि किसी भी लेवल पे आपने जब फिक्स एसेट पे पैसा लगाया है और आप उस पर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते? ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता। अगर आप फिक्स एसेट पे पैसा लगा रहे हैं और रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो फिक्स एसेट खरीदा क्यों? व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर यू परचेजिंग इट? शोकेस में रखने के लिए? जी नहीं, फिक्स एसेट परचेज किए जाते हैं जिससे कि आप उन पे ऑपरेशंस रन करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बेचेंगे और उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और प्रॉफिट जनरेट करके जो कॉस्ट इनकर की है आपने फिक्स एसेट की उसको रिकवर करेंगे, राइट? अगर आपको याद है परिधि, डेप्रिसिएशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन वट एवर दैट वी आर चार्जिंग एवरी ईयर is basically charged for the purpose of replacing that asset, right? When we are planning for the replacement of asset, that means we are knowing कि एक एसेट की एक फिक्स लाइफ होती है, तो उस लाइफ में हम उस एसेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट दैट whatever that we have invested, we will be able to generate at least the cost which we have incurred, if nothing more than that can be recovered. मगर अगर हम सिर्फ कॉस्ट ही रिकवर कर पा रहे हैं, मतलब हमारी प्लानिंग सही नहीं थी, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं लिया गया है। Because every time when a finance manager is taking the decision, the effort should be to take the decision based on the parameter that it should generate return which is greater than the cost that we are incurring. That means cost means the cash outflow that we are incurring. It should always exceed, the return should always exceed the cost. Is it clear now everybody? Paridhi, is it clear बच्चे? अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं कहूंगी कि फिर से एक बार सुनना इस क्लास को, समझ में आ जाएगा। और किसी भी लेवल पे आप समझ के चलिए कि हम बिजनेस को शुरू कर रहे हो नया या बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, फिक्स एसेट में पैसा लगाना है मतलब वी वांट रिटर्न, विदाउट रिटर्न वी कैन नॉट ऑपरेट। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज वेरी वेल क्लियर नाउ। ज्योत्सना बच्चे आ गए फैक्टर्स पे। Let's start with the factors affecting capital budgeting decision.
Okay, so the first factor is cash flow of the project. बहुत ध्यान से समझिए कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है. कैश फ्लो का मतलब होता है, पहली बात, जो भी हम खर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, फाइनेंस के अंदर हम उसे कैश फ्लो कहते हैं. कैश फ्लो कैन बी कंसिडर्ड इनटू टू कैटेगरीज. एक होता है कैश इनफ्लो, मतलब वो रिटर्न जो मुझे मिल रहा है. कैश आउटफ्लो मतलब वो खर्च जो हम कर रहे हैं. ओके, तो जब भी मैं एसेट परचेज करती है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एसेट परचेज करती है, तो उसके अंदर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड इन्वॉल्व होते हैं. और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड का मतलब होता है कि कोई भी एसेट आप देखिएगा सस्ता नहीं आता है. 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो मिनिमम आप किसी भी एसेट में लगाते ही हैं, राइट. तो ये जो एसेट है जिसको आप परचेज कर रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए मान लेते हैं आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सो दैट इज योर कैश आउटफ्लो, राइट. अब आपको क्या असरटेन करना है? अब आपको ये असरटेन करना है कि ओवरऑल जो इस एसेट की लाइफ है, मान लेते हैं इस एसेट की लाइफ थी 10 साल, तो 10 साल में जो ये आपने पैसा लगाया है 15 लाख, उसके अगेंस्ट कितना पैसा आपको इनफ्लो में आने वाला है, राइट. एंड इट शुड बी मोर देन 10 लाख रुपीज इन टर्म्स ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ मनी. मतलब ये पैसा आपका एनपीवी मेथड जब हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो वहां आप देखेंगे कि जो भी एसेट में पैसा लगाया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर को कंसिडर करके ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में जहां आपने पैसा लगाया है उससे कितना इनफ्लो आएगा, राइट. एंड इट शुड ऑलवेज बी मोर देन द अमाउंट दैट वी हैव इन्वेस्टेड. If it is less than that, it's a loss making project. If it is equal to that, it is a no profit no loss situation, but we don't want that to happen. We want returns, so it should be a favorable return project. तो इसीलिए आप देखिए कि कैश फ्लो को हमेशा बहुत ही केयरफुली एनालाइज किया जाता है, so as to understand that wherever that we are planning to invest our money in buying the fixed asset, it should give us favorable return. And favorable return means that the outflow should be less than the inflow, or inflow over and above होना चाहिए आपके outflow के, right. I hope this is clear, everybody, this factor. Okay, now let's read this factor. Okay, so this factor is saying investment decisions are taken so as to earn returns for the firm. Wonderful, सबको समझ में आ गया. Series of cash receipts and payment. Cash receipts means cash inflow, payment is cash outflow over the life of an investment have to be carefully analyzed before taking a capital budgeting decision, right. समझ में आ गया, मैंने ये समझा भी दिया है सबको. एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैश, but after a long period but after a long term may be rejected. इसका मतलब ये कह रहा है कि कैश जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी कैश आउटफ्लो होने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट में, एनालिसिस पार्ट या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को समझने का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स की, जिसको अप्लाई करके ये समझा जाता है कि जहां पैसा लगाया जा रहा है वो एक्चुअली आपको फेवरेबल रिटर्न दे रहा है या नहीं. अगर ये रिटर्न फेवरेबल नहीं था और आगे जाकर आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पेनल्टी का फॉर्म ले लेगी, जो हमने अभी पिछली साइड पे डिस्कस किया. इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट अ गुड कैश इनफ्लो. और जो ये कैश इनफ्लो आता है वो आपको आता है आने वाले सालों में, राइट. यानी कि ये मिलता है आपको ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट. तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करके चलना बहुत जरूरी होता है, right, so that you can understand that actually not only in absolute form but in real sense, are we actually deriving the profit over the project that we have invested our funds or not. Okay, I hope this is clear to all. Is this factor clear to all, everyone? Okay, since I have not received any doubt, let's move further and this is clear. Okay,
देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर री एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, मेरे पास देखिए ऑप्शन है कि वैदिक मैं इसको ना आपको एग्जांपल नहीं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊं, मगर वो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं अभी सिर्फ एक, आपने जैसा कहा कि मैं एक ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं उसको समझा देती हूँ। हमको पता है कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मनी की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स with every year that we are moving, inflation, the value of money is getting degraded। और ये devalue जो हो रहा है, ये जो मनी के रियल वर्थ में जो डाउनफॉल आ रहा है, इससे क्या दिखता है कि हमारी मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ जाती है। मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि आज 1 लाख के बदले में मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, तो मुझे 1.5 लाख तो दिख रहा है, पर क्या मेरी उस 1.5 लाख की परचेजिंग पावर उतनी ही है जितनी की 1 लाख की थी, या उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, मतलब उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? अगर तो ये हुआ है, तो जितने से आपका परचेजिंग पावर बढ़ा है ना, उतना ही आपका इनकम बढ़ी है। उसके अलावा जो आपको इनकम दिख रही है बढ़ी हुई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। ओके, मनी जब हम देखते हैं तो वी लुक एट मनी इन द एब्सोल्यूट मैनर। एब्सोल्यूट मैनर मतलब होता है कि 1 लाख के बदले में 2 लाख मिल रहा है, 2 लाख दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि पैसा डबल हो गया, डबल तो दिख रहा है, मगर व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट 2 लाख? 1 लाख कमाया हमने 1 साल पहले, 2 लाख कमाया हमने 2 साल बाद। 1 लाख जो 1 साल पहले कमाया और 2 लाख जो 2 साल बाद कमाया, क्या वो बराबर है? वो बराबर नहीं है। और वो बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी वर्थ एक नहीं है। एंड व्हेन वी से वर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल पावर ऑफ द मनी, और द रियल वैल्यू ऑफ द मनी, और द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। तो क्योंकि परचेजिंग पावर आपकी मनी की रिड्यूस होती जाती है एवरी ईयर आफ्टर ईयर, इसीलिए ये समझा गया कि जो भी आप एनालिस्ट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि वो इन्वेस्टमेंट क्या आपको उतना ही रिटर्न, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है जितना अमाउंट आज के दिन, आज के टाइम, जब आपका टाइम हम बात कर रहे हैं जीरो है, विच इज टुडे, जब आज मैं 1 लाख रुपए लगा रही हूँ और 4 साल मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो 4 साल के अंदर मुझे कितना मिलेगा जब मैं ये कह सकूं कि मेरे प्रोजेक्ट की 1 लाख की कॉस्ट रिकवर हो गई और इसके ऊपर मुझे बेनिफिट भी मिला, यानी कि सरप्लस भी मिला। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको आपके जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है उसको स्टडी करके मनी की वर्थ निकालनी पड़ेगी, जिससे मैं ये जान सकूं कि आज से जो मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया है, जो आउटफ्लो रहा मेरा, और 4 साल के बाद जो मैंने 4 लाख रुपए अर्न किया है, तो वो एक्चुअली मुझे कितना सरप्लस दे रहा है। मान लेते हैं कि 4 साल बाद जब मैंने इंडेक्स पे इसकी वैल्यू चेक की, तो जो मेरी मनी की वर्थ थी वो सिर्फ 2.5 लाख आ रही थी, तो इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट सिर्फ 1.5 लाख का है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो मुझे दिख रहा है कि 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मगर अगर हम रियल सेंस में देखेंगे, मनी इज वर्थ में देखेंगे, तो 2.5 लाख की वर्थ थी 4 लाख की, इसका मतलब है कि माइनस करेंगे 1 लाख तो सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट है। फर्क समझ में आया? यही कहलाता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड, so that we can understand that wherever that we are putting in our money, since it is involving a huge amount of cash outflow, a huge amount of cash expenditure is going on, so whether it is actually generating a good amount of returns for the organization or not. If it is not generating a favorable return, that project should not get accepted, it should get rejected on its face. Is it clear now? Anybody who is not clear with the concept, still not clear, please ask. जितना आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे लिए समझाने के लिए मुझे इतना पीछे आना पड़ेगा, इसीलिए कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज पूछिए। आई एम इन नो रश टू मूव विद द चैप्टर, आई कैन एक्सप्लेन एनी पॉइंट to you if you have not understood it.
और मैं फिर से कह रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, आई एम अपलोडिंग द वीडियो जस्ट एज टू इंश्योर कि आप उसे वापस से देखिए और समझिए। ये कॉन्सेप्ट्स रटने पॉसिबल नहीं रहेंगे आपके लिए, मैंने फिर से कहा है आपको ये बात। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, भूल जाइए, आगे आप फाइनेंस नहीं लेने के लायक है। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है फाइनेंस की जो आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, इसके आगे बहुत कुछ और पढ़ना पड़ता है फाइनेंस में, तो समझना है। इसका मतलब है कि अभी आपको क्लैरिफाई करना होगा अपने डाउट्स को, वट एवर दैट यू हैव, इफ यू हैव एनी, राइट? या फिर आपको समझ में आ गया है सब कुछ, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वैदिक, इज योर डाउट क्लियर बच्चे? इफ इट इज यस, लेट्स मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर या फिर नेक्स्ट फैक्टर जो कि हमारे जो कि हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है, वो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है, तो मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना होगा, मतलब ROI या ROR कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए कम से कम 10% से ज्यादा, राइट? अब वो 12 हो, 14 हो, 16 हो, डिपेंड करता है कितना भी हो, राइट? बट द पॉइंट इज कि द वन मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया that we have to see is comparing our rate of return with the rate of cost or the overall cost that we have already incurred. So whatever is the overall cost of capital which we have incurred for raising the funds for investment purpose, it should always be, the rate of return should always be more than the cost of capital. Number one. नंबर टू, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके पास ए प्रोजेक्ट भी है और बी भी प्रोजेक्ट है, तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि दोनों के प्रोजेक्ट पे क्या रिटर्न मिल रहा है और कितने लाइफ में, मतलब क्या लाइफ है उस प्रोजेक्ट की और जिसमें आपका वो पैसा रिकवर हो रहा है। जिसका भी पे बैक पीरियड जल्दी होता है, हमको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगी व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। मगर फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न आपको देखना होता है। रेट ऑफ रिटर्न मींस व्हाट इज द बेनिफिट that you are planning to generate over the investment